ہاں ہلو. ہیلو. ہاں عارف اللہ خان صاحب بات کر رہے ہیں. آپ کون؟ میں جسیم اختر بات کر رہا ہوں. جسیم اختر بات کر رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی ہے. جسیم اختر. جی جی. اچھا. میں نے ایک ویڈیو سنا اس لیے میں فون کیا تھا آپ کو آپ اٹھائے نہیں. ارے میں نے تو آپ کو کئی مرتبہ فون کیا ہے. کس معاملے میں کب کیے تھے پتا نہیں مجھے. ارے کئی مرتبہ فون کیا آپ ایک تو بھاگے تھے فون کاٹ کے. اس کس تاریخ سے میں نے کئی مرتبہ آپ کو فون کیا لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا فون اٹھا سکے. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کس بہرحال کس معاملے میں فون کیا اس معاملے ہاں میں ہاں میں کیا آپ کی بتا رہا ہوں پہلے جو ہاں ہماری مین بات ہے وہ پہلے سنو. جی جی. ٹھیک ہے نا. آپ نے جھوٹ بولا تھا ملفوظات حکیم الامت پر. یہ ہماری اور آپ کی آخری بات ہے. آپ اپلوڈ کیے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ نے ملفوظات حکیم الامت پر جھوٹ بولا تھا. میں نے آپ سے ہیڈنگ پوچھی تھی. آپ نے کہا تھا کہ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے ہیڈنگ لکھی ہے عنوان قائم کیا ہے کہ ماں سے زنا جائز ہے. ماں سے زنا جائز ہے ہاں ویسا جب تو نہیں میں کیے نے ہیں. خاموش رہیں عقل خاموش رہیں کے فتوے دیکھو سے ماں ارے کے ساتھ خاموش رہو بھائی. سنو سنو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہیڈنگ پڑھیں عبارت پوری مکمل پڑھیں. آپ نے کہا ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ماں سے زنا جائز ہے. اور جب میں نے حوالے کا مطالبہ کیا تو آپ فون کاٹ کے بھاگ گئے. نہیں پھر میں نے آپ کو سنو میں حوالہ پھر نہیں میں نے دیا آپ کو. ارے خاموش رہو. میں پھر حوالہ میں دیا نے نہیں آپ کو. ارے خاموش رہو یار. پھر میں نے آپ کو کئی مرتبہ فون کیا. آپ فون اٹھانے سے عاجز و قاصر رہے. اب بتائیے آپ نے جو حوالہ دیا اس میں آپ مجھے بھیجیے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر آپ یہ عنوان دکھائیے مجھے کہ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہو کہ ماں سے زنا جائز ہے. چلیے چلیے ٹھیک ہے. میں اس لیے فون کیا آپ کو چلیے وہ آپ اس موضوع دیکھو میں ابھی بات نہیں کروں گا میں. کیوں نہیں کریں گے. آپ جھوٹ عقل کے بولے ہیں نا. فتوے سے آپ دیکھیے جھوٹ بولے ہیں کیوں ادھر نہیں سنیے جھوٹ سنیے اپنی جھوٹی بات پر جو دیکھیے ہے کیا میں بولتے ہیں بات کریں دیوبندیوں گے. کو عارف اللہ میں دیوبندیوں کو مزید ذلیل کرنا مقصد نہیں ارے میرا. ذلیل میں تو آپ ہو اصلاح رہے ہیں کا نا. اصلاحی غرض سے میں آپ بات جھوٹ کرتا بولے ہوں. ہیں نا. آپ نہیں نہیں جھوٹ بولے ہیں بالکل نا. نہیں. عقل کے فتوے سے ماں کے ساتھ زنا کرنا چلیے بالکل عبارت اس میں پڑھیے. تحریر چلیے ہے. عبارت پڑھیے. عبارت پڑھیے. عقل کے فتوے سے ماں کے ساتھ زنا عبارت پڑھیے کرنا یار بھائی. جائز ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کے چلیے آپ نزدیک. آپ عبارت کے پڑھیے. حکیم آپ الامت عبارت نے. پڑھیے. آپ خاموش عبارت ہیں. پڑھیے. جی جی آپ اس عبارت میں پڑھیں. میں بات کروں گا لیکن آپ ہمارے عبارت پڑھیے جسیم اختر. سنیے اس میں بات ہی نہیں کرنا ہے. میں کیوں اس میں کوئی دیوبندی دیکھو کی اصلاح نہیں سامعین ہوگی. اس نے اور جھوٹ بولا ہے تھا واقعی میں اور جھوٹ اشرف علی بول کر تھانوی فون نے کاٹ کے بھاگا تھا. عقل میں کے نے فتوے کئی سے بار جو ہے اس کو فون لگایا لیکن یہ عقل فون کے اٹھایا فتوے سے نہیں. ماں کے ساتھ اب زنا اس جائز نے قرار جو ہے دیا ہے فون اور عقل لگایا کے ہے. فتوے سے ٹھیک ہے گوں تو کھانا بھی جائز قرار دیا ہے اس سے تھانوی. میں مطالبہ کر رہا ہوں تو کہ سنیے بھائی جب تو جھوٹ بولا ہے اور سن تو لو کیا بولتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں ایسا لکھا ہوا علامہ تھانوی رحمہ اللہ دیکھیے نے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ عبارت پڑھ تو اس کو سن دقت لو کیا انشاءاللہ محسوس ہو رہی العزیز ہے. آپ کی دل کی چلیے تشفی اس میں عبارت. آپ کے جو چلیے خدشات ہیں اس کو میں مکمل کر دوں گا. اس میں ہاں چلیے بولیے. ساری دنیا عبارت جانتی ہے پڑھیے. اور ساری دنیا پڑھیے. عبارت بھی دیکھ کوئی نہیں چکی ہے. جانتا کوئی نہیں جانتا تمہاری مکاری کو بالکل تمہاری جانتا ہے. اس لیکن بیانی کو پوری دنیا سنو جانتی ہے. عارف الحقانی چلیے میں اس عبارت لیے پڑھیے. آپ کو میں عبارت فون پڑھیے. کیا. سن لو کچھ غور سے. نہیں عبارت پڑھیے سنو پہلے. غور سے سنو. دیکھو غور سے سامعین سنو. اس عبارت میں پڑھ نہیں رہا ہے. اس میں کیوں عبارت نہیں پڑھ ذلیل رہا ہونا یہ. چاہتے ہو یار. ارے میں تو اس ذلیل لیے کر فون دینا. کیا. سنو غور اگر سے تیرا یہ سن لو. جرم ہے تیرا خیال سن ہے لو یار. کہ اس میں سنو ہم نا. ذلیل ہو جائیں گے تو سنو تجھے نا. پڑھنی چاہیے نا. کون ذلیل ہوگا کون ننگا ہوگا ارے میں یار تو ابھی بتا سنتا دے ہی رہا نہیں ہوں. ہے. آپ چل کو میں عبارت نے پڑھ. اس غرض سے عبارت فون پڑھ. کیا کہ ارے کسی عبارت سے پڑھیے. آپ کی بات ہوئی جسیم ہمارے اختر. علماء سے اور آپ ارے مناظرہ کے لیے ہمارے علماء سارے سے. علماء ابے کو عالم کہہ مناظرہ رہے. کی چیلنج عالم کی دے جمع رہے ہو. علماء ہے. شرم آنی چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں. عالم کی جمع علماء ہے تو کہہ رہا آپ کسی ہمارے علماء سے بات ہوئی. جی یار جی کیا جی کسی ہمارے عالم دین سے بات ہاں ہوئی یہ جس میں بول. یہ مناظرہ بول لیکن آپ علماء کہے گا مناظرہ کی غلط ہو جائے چیلنج گا. کر رہے تھے. آپ کیا کرتے ہیں. ادارے میں کام کرتے ہیں یا مسجد میں کام کرتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ ٹھیلا بٹاٹا لگاتے ہو یار اور مناظرہ کرنے کی چیلنج کرتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو.
चलिए बोल लिए, मुनाजरा की चैलेंज करते हो, यानी बोलिए, मुनाजरा बोलिए करना, आप। सुनो अब एक आप मिनट भी बोलिए। बोला ना, मुनाजरा अरे करना तुम यार लोगों के, बोलिए। तुम लोग सारी जुर्रियत देवबंद को, देखो वल्लाह बताता सामईन, हूँ देखिए ये मैं, अपनी सारी लफाजी शुरू जुर्रियत कर दिया को है। मैं कह रहा ओपनिंग हूँ चैलेंज देता हूँ, देवबंदी हो और मुनाजरा करे, बहुत क्या ताज्जुब यार, है। अल्लाहु और अकबर, आप अल्लाहु लोग अकबर। मुनाजरा करने को, सुन लो गौर से, आप लोग मुनाजरा करने की ताकत भी नहीं रखते हो, और आप लोग अगर मुनाजरा की चैलेंज करते हो तो आपके हकीमुल उम्मत को एक बार याद किया लिया करो यार, जिसके पांव धो करके पीना देवबंदियों के उखरवी निजात है। वो खुद लिखते हैं, देवबंदियों के मुजद्दिद अशरफ अली थानवी अपनी जुर्रियत देवबंद को मशवरा दिया है, फरमाया करते थे अगर तुमसे कोई मुनाजरा करे तो तुम कभी ना करो, इससे दिल सियाह होता है। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 156 में, 158 में लिखे हैं, मुनाजरा से कल्ब में जुल्मत पैदा हो जाती है, ये अब तरीका बोल लिया, बातिन में बहुत अरे मुदिर बोल है। लिया, मलफूजा बोल लिया, अरवाह सलासा अरे में बोल लिया रे। हिकायत नंबर 421 में लिखा है। अख्तर लंगड़े बोल लिया, अब मैं देखो बोलूं तमीज कुछ? से बात करो, तुम अगर तू ठेला सुनता लगाने ही वाले नहीं, हो, इधर उधर की चरसी बातें कर हो, रहा है, और इधर क्या उधर की बातें कर क्या रहा क्या है। तो यार मुनाजरा करना मैं तुम तेरी लोगों बात के को जो है हकीमुल संजीदगी और उम्मत के इत्मीनान के साथ बातों सुनूं। को क्यों लात मारते हो तुम हाँ लोग? खामोश रे, बता रहा हूँ तुझे, ठीक क्यों है? हकीमुल उम्मत को लात मारते अरे हो? भैया तू खामोश रहेगा। हाँ अच्छा बोलो, इसके हाँ, जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, ये है बरेलियों का बहुत बड़ा मुफ्ती अल्लामा फहामा अपने आप को गर्दानता है, लेकिन इसकी हालत जार देखिए आप, इसकी हालत बिगड़ गई है, इसकी हालत कैसे तब्दील हो गई है। ये झूठ बोलकर भागा था डिंगे डिंगे अल्लामा नहीं हाको, थानवी डिंगे नहीं हाको, रहमहुल्लाह पर। डिंगे मत हाको, उसने डिंगे कहा मत था कि हाको। मलफूजात हकीमुल उम्मत में लिखा है, अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह पर अकल इसने के झूठ फतवे बोला से, कि उन्होंने अकल के हेडिंग फतवे से, कायम की है, नहीं उन्होंने अकल के उन्वान फतवे से, डाला है अकल के फतवे से, कि माँ से जिना जायज है। हाँ लेकिन अकल के फतवे से। सामीन, जब मैंने इससे दलील का मुतालबा किया और हवाले का माज़ मुतालबा अल्लाह किया, रब्बिल तो ये आलमीन। देखो देखो सामीन ये खामोश नहीं रह रहा। मैं देखो इसकी बात को खामोशी के साथ सुना, लेकिन अब ये जो है मेरी बात को इत्मीनान के साथ नहीं सुन रहा है। तो मैंने इससे जब दलील का मुतालबा किया कि तू ये साबित कर, अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह ने ये उन्वान कायम किया है, ये हेडिंग डाली है कि माँ से जिना जायज है, और तू इबारत पढ़, ठीक है। लेकिन सामीन ये इबारत पढ़ने से आजिज व कासिर रहा, और ना ये खामोश हो, खामोश हो, ना ये हेडिंग दिखा खामोश सका, हो, और फोन काट के भाग गया। ला हौल वला और कुव्वता इल्ला उस बिल्लाह तारीख अल-अली से अज़ीम। मैंने इसको कई मरतबा फोन किया, लेकिन मैं, ये मेरा फोन आप खामोश उठाने रहो, से खामोश आजिज व रहो, कासिर रहा। उसी खामोश वक्त रहो, जब ये फोन काट के भागा था, खामोश मेरा रहो, मुतालबा पूरा नहीं किया था, झूठ अब बोलकर खामोश हो भागा जाओ। था, उसी वक्त मैंने इसको कम अज कम देखो मैंने देखो इसको 10 मरतबा फोन किया, देखो, लेकिन ये उसी वक्त फोन नहीं उठाया, और उसके बाद भी मैंने कई दफा इसको फोन किया, लेकिन हाँ, इसकी हिम्मत नहीं खामोश हुई रहो, कि ये जो है मेरा फोन उठा सके। खामोश हो क्योंकि जाओ, इसको खामोश हो मालूम जाओ, था कि ये झूठ खामोश बोलकर हो जाओ, भागा है, खामोश हो ये जाओ, अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह चुप, पर इल्जाम लगा के चुप हो भागा जाओ, है। इस वजह से ये जो चुप है रहेगा या फोन, नहीं? खामोश रे, तेरी खामोश सारी रहा, बातों का जवाब इतनी दे रहा हूँ, देरी खामोश बात रे, किया, खामोश रे, मेरे खामोश रे, सुनो, खामोश रे, एक मिनट भी नहीं खामोश रे। सुनता है मेरी बात, सामीन, और तुम्हारी अब कितनी बातें इसने हुई हैं। कॉल किया है, सुनो गौर से इसने सुनो, कॉल किया है, तो मैं हाँ कहता हूँ, गौर से मैं सुनो, कहता हूँ, खामोश रे, मैं कहता हूँ कि अगर तू वाकई हलाली है, हरामी नहीं है, और झूठा कौन हलाली है कौन हरामी है, अभी मैं बात जाहिर कर दे रहा हूँ। खामोश रे, खामोश समझा? रे। अगर तू कज्जाब नहीं है, सुनो काफिर सुनो, अपने आप को नहीं गर्दानता है, तो तू मलफूजात हकीमुल उम्मत की जिल्द बता, उसका सफ़हा नंबर जी बता, जी और जी, इबारत पढ़ के ये साबित कर कि हाँ ये अल्लामा बात थानवी अच्छी रहमहुल्लाह बात ने किया जो है, है, अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह अच्छी ने बात किया उन्वान है। डाला है, हेडिंग कायम की है कि माँ से जिना जायज है, उसके तहत क्या उन्होंने लिखा है वो इबारत पूरी तू पढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात सामीन, मैं आपके खामोश कर दे रहा हूँ आपको। दूसरी बात सामीन ये है कि इसने मेरे ताल्लुक से कहा कि मैं जो है क्या बोलता ठेला वगैरह वगैरह की इसने बात की है, तो सामीन इस पर ये सबूत पेश करे। जी जी जी, मैंने सुना, इसलिए मैं अब पूछा, इसलिए आप खामोश हो, आप खामोश हो जाओ, खामोश हो, खामोश हो। देवबंदी सारे माँ के साथ जना करता है, सुनो खामोश हो, ठीक है, खामोश रहो, खामोश रहो, और अपनी माँ चुप रहो, करने वाला चुप रहे, चुप रहो, हो जाए। अब आरिफुल हक्कानी ये मजीद ये सुनो सुनो, खामोश रहेगा, क्योंकि तू चुप रहेगा कि नहीं रहेगा, करने के लायक नहीं है, खामोश रहेगा या नहीं रहेगा,
तो 2-2 मिनट तय कर, और खामोश रह। झूठ बोला है उस पर बात इतनी देरी बात किया अपनी, तूने शरायत इतनी तय कर, बात रखे हो, शरायत तय कर, इतनी झूठ पहले और शरायत- किस्म से मुलम्मा साजी पहले करके शरायत आवाम तय को कर, गुमराह पहले कर रहे हो। शरायत तय कर, खामोश पहले हो, शरायत। खामोश हो। शरायत तय कर ये लो। तुमको देवबंदी को बाद में शरायत तय अकल करो। होती है, बात शरायत तय करने से करो। कबल ही तुम अरे शराइत और कबल मौजू नहीं तय होता, कर लेते, कबल बोल, लेकिन कबल नहीं, इसे कबल बोल, कबल। कबल ही साला बोल रहा हूँ मुफ्ती गधे। बना घूमता सुनो, है। खामोश हो। कबल बोला है तूने, सबसे कबल। पहले तो ये वापस तुम्हारे तूने फतहा बोला है, जो कबल खामोश हो, बोला है। अबे खामोश कबल रहोगे बोल, या नहीं? कबल बोल। अभी इतना झापड़ मजदूर मारता, मुफ्ती नजदीक अपने आप रहता को था, कहता है, ठेला लेकिन तुझे वाले और उर्दू तक बटाटा तेरी वाले सही और नहीं है। मुनाजरा की चैलेंज करता है, हरामखोर बेवकूफ। झूठ बोलेगा तुम तो खामोश अपने रहो, झूठी खामोश रहो। मक्कारी, अय्यारी बातों से ये तू तौबा देखो, कर, सुनो सुनो, खामोश हो। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं औज़ु कि बिल्लाहि मोमिन मिनश जो होता है शैतानिर वो रजीम, कंजूस बिस्मिल्लाहिर हो सकता है, रहमानिर बखील हो सकता है, लेकिन रहीम। कज़्ज़ाब खामोश रहो। नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर अब अल्लाह के रहमानिर नबी के रहीम। फरमान के मुताबिक अल्लाहु वो जो है वलियुल कज़्ज़ाब है, और तू लज़ीना मोमिनों की आमनू फहरिस्त युखरिजुहुम से मिनज़ खारिज है। ज़ुलुमाति सामीन इलन देखिए, नूर कुरान पढ़ने लगा, वल्लज़ीना तुझसे कफ़रू अच्छा कुरान पढ़ता हूँ। औलियाउहुमुत तागूतु अऊज़ु युखरिजुहुम मिनन नूर बिल्लाहि इला मिनश ज़ुलुमात शैतानिर उलाइका अस्हाबुन नार हुम रजीम। फीहा खालिदून। मैं हवाला से कुरान से तुमको सुना रहा हूँ गधे। खामोश रहेगा? खामोश रहो यार। आरिफ लगानी, आरिफ लगानी, खामोश रहो। खामोश रहेगा? चुप रहोगे या नहीं? खामोश रहोगे या नहीं? आरिफ लगानी मुनाजरे के चैलेंज करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे आकाबिर ने कहा है ये जुल्मात है, मुनाजरा करना जुल्मत पैदा होती है, हो जाती है। ये तरीका बातिन में बहुत मुज़िर है। अज़वाजे सलासा सफ़ा नंबर 307 में, हिकायत नंबर 421 में लिखा। खामोश रहोगे? खामोश रहोगे या नहीं? चुप रहोगे यार? अबे मरदूद जितने भी देवबंदी हैं हरामी हैं, मैं साबित कर रहा हूँ इसको इंशाअल्लाह अज़ीम। खामोश हो। आप देख लीजिए, खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? तिलावत कर रहा था। खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? मुफ्ती अल्लामा कहलाता अरे गधे, है। चुप रहोगे या नहीं रहोगे? नाजेबा अबे गधे, चुप रहोगे या नहीं रहोगे? बंदर है क्या या इधर उधर? खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? कि इसने जो अल्लामा अबे बेवकूफ, चुप रहो ना यार। बोलने की बवासीर हो गई है कि मुंह में मरदूद। चुप रहेगा या नहीं? कायम की है कि हाँ, चुप रहो, खामोश रहो, जवाब सुनो। दलील पेश कर। अबे खामोश रहो। जो है हवाला अबे गधे, चुप रहेगा या नहीं? इतना बड़ा है, इतना गधा है, इतने इसको सामीन व नाज़रीन किराम, ये आरिफुल हागानी है जो देवबंदियों के मुनाजिर है, लेकिन इनके अल्लामा फामा कुर्ता पैजामा अशरफ अली थानवी ने मुनाजरा करने से जुल्मत पैदा हो जाती है और दिल से नूर निकल जाते हैं, जिसके तहत मैंने एक कुरान की आयत यानी आयतल कुर्सी में पढ़ रहा था। खामोश रहोगे? खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? खामोश रहोगे या नहीं रहोगे? माँ के साथ ज़िना करते हो तुम लोग, घूम खाते हो अकल की फतवे से तुम लोग, और सुन्नियों पे भोंकने चले हो और मुनाजरा करने के लिए आए हो। सुनो गौर से, सुन लो। मैंने कुरान, हराम खोर सुनो। अबे हराम खोर सुनो। खामोश रहोगे? बवासीर मुंह में हो गया क्या? मुंह में बवासीर है क्या, या किसी ने बरेली के बाद ढकेल दिया है? खामोश रहो। मैंने सुनो, आरिफुल हागानी, तुमको मैंने कुरान की आयत पेश की, यानी मलफूजात। इतना झापड़ मारेंगे, कान साफ करो। सुनो गौर से, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, सूरतुल बकरा आयत नंबर 257, पारा नंबर 3, सूरा नंबर 2 है। इसमें कुरान में ये है, ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शैतान है, वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाती है। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। ये कुरान का फरमान है, और अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि मुनाजरा करना जुल्मात है, अंधेरों के तरफ ढकेल के ले जाती है, जैसे कि उन्होंने बयान किया, मैंने हवाला दिया। तो ये मुनाजरे के चैलेंज करके ये अंधेरे के तरफ और शैतान इसको जहन्नम की तरफ सारी देवबंदियों के ले जा रहे हैं, है ना। शैतान के दोस्त हैं, और इन्होंने मुतालबा किया
कि माँ के साथ जना करना और गू खाना कहाँ लिखा है। मैं हवाला देता हूँ, गौर से सुनो सामीन व नाज़रीन। मलफूजाते हकीमुल उम्मत है, जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 67 है। एक शख्स ने कहा था वह अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा कि अरे खबीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हरज क्या हुआ? ये हुक्म तो अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स गूं खाया करता था, मना करने पर कहा करता था जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो इसमें क्या हरज है? तो थानवी साहब बड़े फर्राटे से जवाब देते हैं, क्या तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अकल के फतवे से माँ के साथ जना करो और गू के भी खाओ, मर्दूदो शर्म करो तुम लोग। तो असल में तुम लोग हलाली नहीं हो, हरामी हो। मैं सुनो, मैं दलील देता हूँ इसके फजले, तुम लोग हरामी हो। सुनो गौर से, फजले खुदाबंदी है, किताब सफा नंबर 53 है, आरिफुल आगानी सुन लो। फजले खुदाबंदी में ममाती देवबंदी के मुतालिक लिखता है, अबू अय्यूब देवबंदी अपने बातों को रखता है उसमें, जो इन ममातियों को देवबंदी कहे वो हलाली नहीं है। फजले खुदाबंदी सफा नंबर 57। मजीद लिखा है, बाकी हम और हमारे अकाबिर ना उनको अहले सुन्नत व जमात समझते थे और ना समझते हैं। 53 में, सफा नंबर 53 में और फजले खुदाबंदी में ही इनको समझे क्या कहता है। सुनो गौर से सुनो, देवबंदी उलमा के मुसद्दका किताब है ये फजले खुदाबंदी। इसका उमैर कासिमी देवबंदी के नजदीक ममाती फिरका के पेशवा मौलवी इनायतुल्लाह शाह बुखारी देवबंदी, वो फिरका अकाबिर के सरपरस्ती हैं। वो कहते हैं कि हमारे अकाबिर हैं, वो शान है, देवबंदियों के आन है। इससे साबित हुआ कि सारे देवबंदी हलाली नहीं है, हरामी है। अगर तू सुनेगा ना तो मैं भी अपनी बात पेश करूं फिर तो समझे तुम हरामी ही साबित हुए या नहीं हुए? अब खामोश रहो ना, जवाब देता हूँ। सुन लो, तुम हरामी साबित हुए या नहीं? ये कि ये फजले खुदाबंदी सफा नंबर 53 में लिखा है और शान है, आन है, बान है करके मौलवी इनायतुल्लाह शाह बुखारी को आप देवबंद की आन शान बता करके ममाती का सरगना है, ये हेड है, इन्हीं से शुरू हुआ। समझे? ममाती फिरका करोगे, ऐसे ही बात करोगे। सुन लो, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने तो बात जब रखी थी तो मैंने गौर खौज से सुना, लेकिन मेरी बात जब आने लगी और तुम लोगों को हरामी साबित करने लगा तो तुम चीखने चिल्लाने लगे। जो है मेरी बात नहीं सुनेगा, अपनी ही बात रखेगा, तो ऐसे मैं भी करूं ना, तू मेरी सुन ना मैं तेरी सुनूं, ऐसे ही कर। हाँ, 2 मिनट बोल लेता हूँ, उसके बाद तुम बोलना है ना। अरे 2 मिनट से ज्यादा तू कितनी मिनट तुम बक कर रहे हो मुनाजरा के लिए। तुम मुनाजरा के चैलेंज दिए ना, तुम्हारे दिल तो स्याह है, मुनाजरा करने से दिल स्याह होता है, तुम्हारे थानवी ने लिखा है। यहाँ पर मुनाजरे की बात ही नहीं हो रही ना, अब खामोश रहे। यहाँ पर बात ये हो रही कि तूने जो अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह पर झूठ बोला कि अल्लामा थानवी तो मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, उसकी बात नहीं कर। तुमको हरामी साबित कर रहा हूँ ना मैं, सारे देवबंदियों को हरामी साबित कर दिया मैं। फिर ये बोलने लगा तो तुम हरामी हुए या नहीं हुए? अरे खामोश तो रहे। अबू अय्यूब देवबंदी को मानते हो या नहीं मानते हो? उमैर कासिमी को मानते हो या नहीं मानते हो? बताओ। फजले खुदाबंदी तुम्हारे घर की किताब है और मोतबर किताब है, और मोतबर किताब की रोशनी से तुम सारी जुर्रियते देवबंद हरामी साबित हो रहे हो। कहने से तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। अरे यहाँ लिखी हुई देख, देवबंदी के उलमा मुसद्दका किताब है फजले खुदाबंदी, जो मेरे हाथ में है, वो उलमाए किराम के लिखता है इनायतुल्लाह शाह बुखारी के, इनायतुल्लाह शाह के बारे में। वो उलमाए किराम है जो देवबंदियों की शान है, जिससे देवबंदियत की पहचान है, वह देवबंद के काबिर हैं। फजले खुदाबंदी सफा नंबर 123 में लिखा है। और ममाती फिरका को जो अबू अय्यूब कहा है वही किताब में, अबू अय्यूब ममाती फिरके को जो देवबंदी का है वो हलाली नहीं है। मतलब कि सारे देवबंदी अबू अय्यूब समेत और उमैर कासिमी समेत सारे देवबंदी हरामी हुए या नहीं हुए? मेरी बात सुनेगा? अर्थात हरामी हुए या नहीं हुए? अपनी माँ के साथ जना करने का नतीजा देख लिया।
सारे देवबंदी अगर देवबंदी बने रहोगे तो तुम हरामी साबित होगे इसी तरह से। देखिए मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्या सुनाओ, क्या सुना आपने? हरामी से छुटकारा हासिल करो। खामोश रहे, इतनी देर तूने बोला है, मैं चीखने बीच में चीखना नहीं है ना, खामोश नहीं रहा। हाँ तू खामोश नहीं रहा, मैं बार बार तुझे खामोश कराने की कोशिश, मैं खामोश करा रहा था तुमको। ऐसा लगता था कि तेरे जिस्म के अंदर मौलवी अहमद रजा खन्नास की शैतानी रूह मुंतकिल हो गई। तू देखो बदतमीजी से बात कर रहा है, बरेलवी की बात तुम देवबंदियों के दुबुर में घिसेड़ दिया हूँ बगैर खंबा के। तुम लोग हलाली नहीं हो, हरामी साबित कर दिया मैं। फिर बोलने लगा ये तो हरामी, तुम अपने आप को हलाली साबित करो। सबसे पहली बात तुम अपने आप को हलाली साबित करो। खामोश रहे, पहले तुम हलाली हो या नहीं हो? खामोश रहे, खामोश रहे। बेवकूफ, ठेला के दुकान में ढकेल ढकेल के ठेला बटाटा के दुकान लगा के मैं मुनाजरा करूंगा, मुनाजरा करूंगा। जूते से मारेंगे तो मुनाजरा के मीन से भी भूल जाओगे, वाकिफ नहीं रहोगे, समझे? तू अपनी माँ से जिना करता है हरामखोर। तुम माँ से जिना कर रहे हो ना? तुम थानवी के पैर धो करके पीते हो तब निजात मिलेगी। थानवी की बात का अगर इनकार कर दोगे तो सारे देवबंदी जहन्नुम में, उखरवी निजात नहीं मिलेगी। खामोश रहे। तुम्हारे मोतबर किताब में लिखी हुई तज़किरतुर रशीद में आप पढ़ लो। मलफूजात हकीमुल उम्मत पर एतराज किया और उसमें से आधी अधूरी बात पेश की। उस कौल किसका पेश किया? वो जो ऐसा काम करते थे। अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह ने खुद ही वाज़े कर दिया है, क्या डाली है दीनी हालत की बर्बादी का सबब। इसके तहत अल्लामा थानवी, इसका जवाब नहीं दोगे हरामी है या नहीं? वो उसको थोड़ा घूम खाते रहो। तुम मुबारकबादी देता हूँ, तुम तज़किरतुर रशीद में गू का तबरुक बनाओ, गू का तबरुक भी बनाओ, माँ के साथ ज़िना करो या गू खाओ, सूअर बन करके खाओ। यार इमदादुल मुश्ताक में भी ऐसे हमें हवाला मिलते हैं। लेकिन तुमको मैंने अभी आरिफुल हगानी साहब, मैंने आपको हरामी साबित किया सारे देवबंदियों को। उसका जवाब नहीं दोगे? सुनेगा नहीं तो बात क्या करूं तुझसे? फेरिस्त तैयार किया है उमर कासमी ने इनायतुल्लाह शाह 21 नंबर पर 21 नंबर डाला और उसमें इनायतुल्लाह शाह बुखारी को लिखा है अपने अकाबिर में। क्या फायदा, मुझे तो बोलने दो ना। अरे फायदा नहीं है, तुम लोग हरामी साबित हो रहे हो, शर्म करनी चाहिए। या तो अबू अय्यूब कज़्ज़ाब देवबंदी को लात मारो, अरे कम से कम सुन कहो कि इलियास गुम्मन जैसे मक्कार दज्जाल शैतान को हम लोग ठोकर मानते हैं, अपने अबू अय्यूब कज़्ज़ाब शैतान दज्जाल को ठोकर मारते हैं, उमर कासमी जैसा बेवकूफ नालायक सरगना शैतान को ठोकर मारते हैं। अपने ही एक किताब में लिख करके अपने ही से हरामी साबित हो रहे हो ना यार। सुनेगा ही नहीं, हराम खो रहा है। ये आरिफुल हक्कानी की मार है। अरे तुमको मैं बीमार कर रहा हूँ, ये अख्तर रजा की मार है कि तुम शैतान के दूर में पीला और लाल है और तुम लोग बीमार है। सामईन सुनेगा ना, जब सामईन सुनेंगे रिकॉर्डिंग सुन लो, सुन लो कि मैं तुझे बारह खामोश रहो। मैंने कई बार तुमको, मैंने तुम्हारी बात जब हो रही थी तो मैं खामोश था और तुम अपनी सफाई में बार बार माँ के साथ ज़िना करने को और गू खाने को जायज जो अकल के फतवे से करार दिया है, उसमें क्या जवाब है तुमको? मैंने उस तरफ से ना करके मैंने तुम्हारी वीडियो, खामोश रहोगे यानी बवासीर हो गई तुम्हारे मुंह में, इलाज कराओ, रहो खामोश रहो, खामोश हो जाओ। ऐ मेरे शैतान के पुत्र, ऐ शैतान के पुत्र, शैतान के पुत्र खामोश रहो। ऐ शैतान के बच्चे खामोश रहोगे, खामोश रहोगे। ये देवबंदर हमारे उलमा को चैलेंज करता है। सारी देवबंदी को चाहिए कि अशरफ अली थानवी के पैरोकार बन के रहें और मुनाजरा करने से दिल सियाह होता है। कुरान की आयत मैंने पेश की जिससे शैतान जुल्मात पैदा करती है और जहन्नम की तरफ ले जाती है। ये शैतान मुनाजरे के चैलेंज के खामोश रहोगे, खामोश रहोगे, खामोश रहोगे, खामोश रहोगे, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। माँ के साथ ज़िना करते रहो। तुमको मुबारकबादी देता हूँ देवबंदर, देवबंदी, देवबंदी, देवबंदी खामोश
करोगे? जो है देवबंदी, ये देवबंदी, देवबंदी खामोश हो। मेरे ये देवबंदी इस उसूल से मैंने हरामी साबित किया। देवबंदी सामीन कराम, अगर आप देवबंदी गलती से बन गए हो तो आप अपने आप को हलाली बनाओ, हरामी रहने पसंद ना करो, कोई भी पसंद नहीं करता। खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो। फतावा हक्कानिया जिल्द नंबर अव्वल में सफा नंबर 403 में ये लिखा है, पंजपीरी और उनके मुतबईन के अकीदा सही और दुरुस्त है, वह अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हैं, अगरचे बाज मसाइल में शिद्दत से काम लेते हैं जो कि राह इत्तेदाल से तजावुज कर चुकी है। इस सख्ती, सुनो गौर से, सुनो गौर से, मेरी बात को गौर से सुनोगे उसके बाद मैं सुनूंगा। सुनो, मत भागो, मत भागो, मत भागो देवबंदी, भागो नहीं। ये फतावा हक्कानिया में जो ममाती फिरके को मुसलमान करके हरामी साबित हो रहे हो अपने आप को, तो कब तक हरामी बनोगे यार? तो तौबा करके मुसलमान बनो यार। तो खुद हरामी साबित तुम हुए यार। माँ के साथ जना करो, घूम खाओ और शराइ से बात करने तक तुमको अगर 2-2 मिनट बात करते तो हरामी साबित मैं करता, मजीद इसमें हवाला देता ताकि जुर्रियत देवबंद उछल कूद करके उन पे लहर और वो हुस्सामुल हरमैन की मार से जिस तड़प रहे कर्ब में, जल में, वो हराम खोरी करके सारे देवबंदी हराम खोर। देखो ये नहीं, उन्होंने कहा जहन्नमी कहा, जहन्नमी कहा, कौन जहन्नमी है? या अशरफ अली थानवी से अगर पूछ लेता तो उनके अकाबिर खुद उनको जहन्नमी कहे हैं। अगर समझे, सुनो गधे, ठेला लगा करके बेवकूफ फासिक मोलिन तुम मुनाजरा करने आओगे मेरे आलिमों के साथ में? यहाँ नहीं हो रही है। और तुम ठेला बटाटा लगाते हो और अपने आपको अल्लामा फहामा कुर्ता पजामा क्या 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 कहते हो। तुम्हारे पिछवाड़े में से आगे से पीली कर दूंगा, समझे, और आगे से गीली कर दूंगा। बरेली के बांस लेकर के बैठा करता हूं मैं, और ये डंडा मारता हूं देवबंदियों को ताकि उसको पानी ना मिले, समझे। तड़प तड़प कर बाहिए बेआब होकर मर जाओगे, समझे। तुम खामोश हो, उलमाए हक देवबंद करने हक पर नहीं होगे, समझे। ये सुन लो गौर से, इल्मी बात करोगे तो मैं इल्मी बात करूंगा। 1957 में, सुनो, 1957 ईस्वी में ममाती फिरका बना कि नहीं बना देवबंदी? ममाती फिरका बना या नहीं बना? सुनो गधे, 1957 में ममाती फिरका बना जिसमें हयातुल नबी कोर्स में सफा नंबर 16 में ये देवबंदी के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी खुद लिखता है, ये इनायतुल्लाह शाह जो है, ये सबसे पहले 1957 में 13 सदी गुजर जाने के बाद 14वीं सदी में ये हराम खोरी किया और ममाती फिरका का सरगना है, ये काफिर और मुशरिक है। और दूसरी तरफ ममाती फिरका को अबू अय्यूब देवबंदी ने हरामी कहा, हलाली नहीं होते हैं। और उमैर कासमी फजले खुदाबंदी में क्या लिखा, ये इनायतुल्लाह क्या है, इनायतुल्लाह गुजराती जो है, इनायतुल्लाह शाह बुखारी के बारे में जो गुजरात में था, ये बहुत बड़ा अल्लामा फहामा था, उसके बारे में क्या लिखा, उलमाए देवबंद की शान है, आन है, पहचान है। ये सफा नंबर 123 में। तो बताइए, ये शान बान आन करके साबित करके तुम हरामी हुए या नहीं? अपने उसूल से तुम अपने उसूल से हरामी हो या नहीं? अपने फतवे से हुई है। और सुनो गौर से, आरिफुल आगानी तुम सुनो गौर से, तुम अगू कितने खाए हो? सही से बताओ, तुम अपनी माँ से कितनी बार ज़िना किए हो? अकल के फतवे से अशरफ अली थानवी का फतवा है ना, अशरफ अली थानवी का फतवा है, घू खाओ और माँ के साथ ज़िना करो और हरामी बनो फजले खुदाबंदी के फजले से।
कौन गधे? गधे कहाँ से कहाँ भाग रहा है मर्द? आरिफुल आगानी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द मैंने सामीन किराम ये देवबंदरों को मैंने हरामी साबित किया। उनकी ही रोशनी से उनके फतवाजात उनकी किताबें मौजूद है और ममाती फिरके को शान बान बता करके, और जो भी उमैर कासमी साहब को देवबंदी हैं बड़े मुनाजिर बनते हैं, लेकिन उमैर कासमी फोन नहीं उठाया, मेरे कई बार मैं लगाया, दुम दबा करके उसके गधे की सींग सर से जैसे सींग गायब होता है वैसे गायब हो गया, और बाद में उठाया नहीं। मैं कितनी बार लगाऊं? इनके सरगना मौलवी आरिफ हगानी देवबंदी जो ठेला और बटाटा का काम करता है ये, और बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और आवाम को गुमराह करता है, मैंने इसको लगाया तो ये अपने पता नहीं मुंह में बवासीर हो गया है, बोलने की बीमारी है इसे, और ठेला लगा करके चीखने चिल्लाने की आदत है इसे, इसलिए चीख चिल्ला रहा है। चीखने चिल्लाने से थोड़ी हक में हो जाएगा। सारी देवबंदी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि सारी देवबंदी हरामी है, हलाली नहीं है। उन्हीं की किताब की रोशनी में अब खुद आप फैसला करें कि देवबंदी के साथ रहोगे, हरामी के साथ रहोगे, या तो तुम अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो। ये आरिफुल हगानी है, माँ के साथ जना करके आया है। ये शराब पीना भी जायज, शराब पीना जायज इन लोग भी करार दिया है। कैसी इसकी किताबें लिखा है, देवबंदियत की किताब पढ़ने से माथा पीट लेते हैं। इन लोगों को अक्ल है या क्या है पता नहीं। अशरफ अली थानवी रिसर्च करके लिखा है कि देवबंदियों का अक्ल, शूर, ईमान, अकीदा गधे के उज़्व मखसूस की जैसा है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। ये गधे सुनेगा नहीं, इसलिए इसे लात मारिए।